Good afternoon, viewers. So nice of you for your nice response to my earlier videos. I'm sorry I could not upload my this video in time because I was slightly indisposed. But now let us have. I was discussing in my last lecture about the concept of quality. So now we will have quick and fast brush up of what is quality. Quality is a policy of a company, and making poor quality and a good quality is the discretion of the manufacturer, because he decides the quality based upon his customer base. Society has got various types of customer: poorest, poor, middle class, lower middle class, higher class, and extremely rich people. So the product is based, the company has got a policy to cater to the needs of which society, which segment of the society. Keeping that in mind, the company takes a policy decision whether we will go in for a very high quality or a low quality. So making a poor quality product is absolutely not an offense. It is his policy, and somebody is making a statement that I am making a quality product is just a misleading statement. It does not convey anything. So now, to what is the basic, simple thumb rule for quality? So long as your customer is happy, you are happy. You are making good quality so long as you are meeting the requirement and aspirations of your customer. You are doing your job well. So yesterday, on that day, I had told God how to measure, कैसे आप एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को नापें अगर आपके पास बहुत हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आप एज ए कस्टमर मार्केट में जाते हैं और एक प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं, और कैसे आप उसको असेस करेंगे कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे कैसे आप क्विक चेक। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए भगवान ने हर इंसान को 5 सेंसेस दिए हैं। द फर्स्ट सेंस, God has blessed us with 2 eyes. Have a look at it with these 2 eyes, whether it suits your eyes, whether its appearance is fine or not. It looks pleasant to your eyes. That is the second sense is you can smell it. God has given us a nose. You can smell it and feel whether when you are going to buy one sweet or something or curd or anything, if you want to know whether it is a good one or not, you can smell it and find out whether it is a foul or it is a not, it is a sore or whatever it is. Then the third thing, भगवान ने हमको टेस्ट करने के लिए जबान दी है। यू कैन किसी भी चीज़ को, खाने वाली चीज़ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आप टेस्ट को फील करके उस आइटम को रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड दैट भगवान की यूज दिस टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर द प्रोडक्ट इज गुड और नॉट। देन चौथी क्वालिटी जो भगवान ने सेंस दिया हम सबको, वो सब है सुनने की। कान दिया भगवान ने, इस कान को इस्तेमाल करिए और सुन के, जैसे आप मिट्टी का घड़ा खरीदते हैं, मिट्टी का कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको लोग बोलते हैं कि ठोक बजा लीजिए। दैट मीन दिस व्हेन यू जस्ट हिट इट विद दिस, द साउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग गिव्स यू एन आइडिया whether the equipment is sound and solid or not. Then the fifth is a feel with this hand. Fifth sense, God has gifted us with our hands. You can test the strength of the pen. You go for a, जब आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो पहले आप उस सब्जी को अपने हाथ के टच से आप फील करते हैं कि वो सब्जी ठीक है कि नहीं है, ज़्यादा गली हुई तो नहीं है, सड़ी हुई तो नहीं है, पुरानी तो नहीं है। और यूजिंग इन सारी की सारी पांचों सेंसेस को हम अपने डेली यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी क्वालिटी को मीट करती है कि नहीं करती है। देन क्वालिटी, मैंने ये भी कहा था कि क्वालिटी एक आदमी का काम नहीं है। क्वालिटी उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस घर के हर सदस्य का
बराबर रोल है। जब तक सब लोग अपना रोल बराबर से पे नहीं करेंगे तब तक आपकी रिक्वायर्ड क्वालिटी मीट नहीं की जा सकती। इन सारी थ्योरीज को डिफरेंट तरह से लोगों ने, साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है। पहले ज़माने में लोग कहते थे इट इज़ ए क्रैडल टू ग्रेव कॉन्सेप्ट। एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जब इंसान धरती पे आता है उसको झूले की ज़रूरत होती है। तो देन द लाइफ गोज ऑन, एट द एंड ऑफ इस लाइफ उसको बरियल चाहिए। उसको जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो दैट इज ही रिक्वायर्स ए डिसेंट ग्रेव। बट नाउ दिस हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम ऊम्ब। जब बच्चा माँ के पेट में, माँ जब बच्चे को कंसीव करती है उसी दिन से आपको क्वालिटी की ज़रूरत है। उस माँ को आपको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। और बच्चा जब तक माँ के पेट में है तब तक उसकी हेल्थ को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ऊँट से लेकर के आपको ग्रेव तक की कंसेप्ट है। और कहीं पर भी आपने क्वालिटी को इग्नोर किया तो लाइफ विल बिकम हेल। यू विल नॉट हैव ए क्वालिटेटिव लाइफ। जब आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो उसको अक्रॉस द बोर्ड फंक्शन कहते हैं। एक पियून से लेकर चेयरमैन ऑफ द कंपनी हैज़ टू बी इन्वॉल्व टू गेट ए डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपको अपनी क्वालिटी, अगर वो पीएन भी अपनी सर्विस नहीं करता है तो अगर आपने उसकी रिक्रूटमेंट पे आपने कोताही बरती है और उसको प्रॉपर आदमी को नहीं रिक्रूट किया है और तो भी आपकी जो कंपनी है वो फेल हो जाएगी। हर एक आदमी को बराबर इम्पोर्टेंस दीजिए। दैट इज कॉल्ड दी, पर उसके दैट इज कॉल्ड दी अक्रॉस द बोर्ड फंक्शन। हर चीज, हर इंसान जो भी उस प्रोडक्ट को यूजर से लेकर के मैन्युफैक्चरर, मार्केटिंग, सेल्स, सबको उस प्रोडक्ट में जब तक सबका बराबर और रोल नहीं प्ले करेंगे और एक कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल वे से वो रोल नहीं प्ले करेंगे तब तक आपको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। देन मैंने और बाकी 6-7 फीचर देखे थे, बताए थे आप लोगों को। उसकी मेंटेनेंस कास्ट बहुत, आजकल जैसे ऑलमोस्ट सबकी व्हीकल जो है काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजिकली ऑप्टिमम हो गई हैं। तो आजकल जो है नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। द मेंटेनेंस कास्ट should be reduced to the minimum because petrol is nowadays running at, उसको हम 100 रुपया पर लीटर पे हम पेट्रोल खरीद रहे हैं। अगर वो 1 किलोमीटर पर किलोमीटर की अगर हम कास्ट को मेंटेन करने के लिए कम नहीं करेंगे तो एक नॉर्मल आदमी उस व्हीकल को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जब अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो उन मैन्युफैक्चरर को अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर करके जब कोई ग्राहक ही नहीं होगा तो कंपनी कैसे चलेगी। इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए मार्केट क्रिएट करने के लिए आपको डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज करके सो दैट दी कास्ट पर किलोमीटर पर दी व्हीकल जो है चलाने के लिए कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें मार्केट में जब हम प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तो जो आपका सप्लायर है, जो वेंडर है, जो शॉपकीपर है, वो अक्सर हम लोगों को मिसगाइड करते हैं कि साहब ये गारंटी है, ये वारंटी है। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज ए गारंटी एंड व्हाट इज ए वारंटी? गारंटी एक कमिटमेंट है बाय द मैन्युफैक्चरर। आई एम अगेन रिपीटिंग, गारंटी इज ए कमिटमेंट एंड वारंटी इज एन अश्योरेंस। जैसे जीवन बीमा है, जैसे ना इंश्योरेंस पॉलिसी है, वारंटी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, गारंटी इज ए कमिटमेंट। व्हाट इज द कमिटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर कि ये जो प्रोडक्ट है इतने समय के लिए ये उसकी परफॉर्मेंस होगी और अगर ये प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करती है तो हम इसकी जगह इसको हम ठीक करके देंगे। ठीक पहले तो ये है कि वो ठीक करके देगा। अगर वो किसी भी हालत में रिपेयर नहीं कर पा रहा तो आपको दूसरी प्रोडक्ट देगा। और अगर उसके पास उसकी कोई रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट भी उसके पास स्टोर में नहीं है और वो प्रोडक्ट उसने कहा था कि ये 2 साल तक या 5 साल तक प्रोडक्ट काम करेगी और 3 साल के बाद वो प्रोडक्ट ने काम करना बंद कर दिया
और उसके पास उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए उसके पास दूसरी प्रोडक्ट भी नहीं है, तो इन द केस ऑफ गारंटी उसको उसकी रिप्लेसमेंट अगर नहीं दे पा रहा तो उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। आजकल कई तरह की गारंटी आ गई है, रिप्लेसमेंट गारंटी, मिनिमम प्राइस गारंटी। मिनिमम प्राइस गारंटी भी कुछ कंपनीज इन कुछ कंट्रीज में देती हैं, मिनिमम प्राइस गारंटी, कि हमारा प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में देंगे खरीदेंगे तो हमारे यहाँ से अगर आपको खरीदेंगे तो हमारी कास्ट जो है हम आपको सब मिनिमम प्राइस पे देंगे। इवन बिग बाजार इन इंडिया कभी कभी इस तरह की गारंटी देता है और मार्केट में अपने टीवी पे ऐड देता है कि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो सबसे कम प्राइस पे होगा। इन यूके आई वाज देयर, वहाँ तो लोग वो कहते हैं कि अगर आप साहब मिनिमम प्राइस गारंटी, अगर आप उसको बता दीजिए कि ये प्रोडक्ट उस स्टोर में इतने पैसे में कम मिल रहा है, then he will immediately give that ring to that storekeeper or that store and confirm क्या वो जनरली उस जगह पर इस प्राइस से कम में मिल रहा है। तो he will not ask any questions, he will immediately give you the difference. Likewise, minimum price guarantee and service guarantee, various types of guarantees are prevalent. Now coming back, क्या नो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर मान लीजिए मैं डिफॉल्टर हूं, मैंने एक प्रोडक्ट को खरीद के लाया था, मैं उसको पेमेंट नहीं कर पाया, किसी कारणवश आई एम नॉट एबल टू पे द मनी। अगर मैंने किस्तों में लाया था तो मेरे किस्तों का डिफॉल्टर हूं, अगर मेरे कुछ और प्रॉब्लम है तो क्या गारंटी एप्लीकेबल है? तो गारंटी इज एप्लीकेबल इवन इफ you have not been able to pay even if you are a defaulter. So guarantee is only, he is giving a guarantee that this product will perform, this will be his performance parameters. उसका पैसे देने या ना देने से कोई मतलब नहीं है, उसको guarantee is applicable. Then there is a second, does it cost any money? By giving a guarantee, you have not to pay even a single penny extra. There is no charge for giving guarantee. Guarantee is absolutely free of cost. Now, the second is warranty. Warranty is just like an assurance. It is just like a bima policy. You have to pay money for that. He gives you a warranty that अगर हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा या किसी कारणवश नहीं परफॉर्म करता और अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफॉल्ट है, हम उसको ठीक करके देंगे। और ओनली एंड देयर आर सर्टेन कंडीशंस। वारंटी में वो कंडीशन जैसे जीवन बीमा पॉलिसी में है, अगर आपको इस बीमारी से आप मरेंगे तो हम आपको बीमे के पैसे नहीं देंगे, इसी तरह वारंटी में वो कंडीशन ले सकता है। इट इज स्लाइटली इंफीरियर टू गारंटी। अ गारंटी इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ वारंटी, एंड इन एनी केस इफ यू वांट टू हैव warranty, you have to pay some money for that. Now the second question now comes, क्या अगर एक प्रोडक्ट विच इज ऑन गारंटी, क्या हम उसके ऊपर क्या दोनों चीजें गारंटी और वारंटी क्या कंकरेंटली चल सकती हैं? चल सकती हैं। बोथ दी गारंटी एंड वारंटी दोनों एक साथ भी चल सकती हैं। अभी आपने बहुत सारे फ्रिज या टीवी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उसमें गारंटी तो है ही है इनबिल्ट, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज वो एक परफॉर्मेंस की गारंटी है। अगर वो प्रोडक्ट परफॉर्म ही नहीं कर रहा और उसके परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वो पैसे थोड़ी लेगा। द कास्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ। उसकी जो कास्टिंग करी गई है उसमें गारंटी दैट मच पीरियड इट विल रन, उसकी कास्ट उसमें इंक्लूड करी गई है। नो वारंटी में तो आपको पैसा देना। क्वेश्चन इज क्या दोनों इकट्ठी चल सकती हैं? दोनों ही इकट्ठी चल सकते हैं। गारंटी एंड वारंटी कैन गो टुगेदर। देन इसके साथ और आज का लेक्चर मैं कंक्लूड करता हूँ। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। काइंडली विद द रिक्वेस्ट to kindly like my channel, subscribe to my channel
and comment on my channel. Thank you very much.